we try to give them all the protective gears, all the protective equipments, because as a healthcare worker we cannot sit at home. So right now, police wale, defense wale, healthcare workers, sanitary workers, these are the people who are fighting this struggle on the streets. So we cannot say कि हम लोग घर बैठ जाते हैं, बच जाते हैं, but yes, we have to help each other. आप हम लोगों को जो civilians हैं, उन जो इसमें participate नहीं कर रहे front line पे, they have to help them. They have to help them by staying at home. They have to help by not spreading this more. And the people who are fighting it, we need to help them by providing more protective gears. So जो हमारी team है, we have done such steps. We have provided them with all the protective gears, masks, gloves, PPE, other PPE. So hopefully, by your blessings, everything will be good out of this lockdown, and will emerge as winners. मैं तो वही कहता हूँ, ऐसी सिचुएशन ना आए कि जो हमारी मदद कर रहे हैं, अगर उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, दे मे आल्सो से कि नथिंग डूइंग, वी विल आल्सो लाइक टू स्टे एट होम. Hopefully नहीं आएगा सर. That situation should not come. Yes sir, yes. Thank you so much, Colonel. Okay sir, thank you sir. So today, the topic I chose today is a very common घर की कहानी, which is Cubs, constipation. So wanted to touch upon this topic as well during this lockdown period, because जितनी भी हम डिजीज के बारे में बात कर लें, डायबिटीज है, बीपी है, थायराइड का इशू है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, एसिडिटी के इश्यूज हैं, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, अल्टीमेटली ये सब लोग एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है कब्ज. और जो बढ़ती उम्र है 50 साल के बाद भी ये इशू अपने आप सामने आना शुरू हो जाता है. एंड इट हैपन सो ग्रेजुअली दैट नाउ वी हैव एक्सेप्टेड इट कि कब्ज तो हमारे रूटीन का हिस्सा ही है. तो वी डोंट इवन नो कंप्लेन मच अबाउट कब्ज, एंड वी हैव फाउंड सम गुड रेमेडीज आल्सो. घर पे सारे का अपना एक प्रोसेस है टू फाइट दिस कॉन्स्टिपेशन. Some people are dependent on some medicine, some people do their lifestyle modifications, some people eat some right food. So everybody has a different process to fight this constipation that they have. So I wanted to touch upon, discuss this topic, interact with you on constipation. So find out, a better solution for all of us who are listening, so that we get rid of this problem. Because constipation एक तो ये दिक्कत तो करता है पेट में, जो है इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत बुरा है. तो सारा दिन दिमाग में चलता रहेगा कि मेरा पेट साफ नहीं हुआ, पेट साफ नहीं हुआ, और उसकी वजह से बाकी चीज़ों में आपका ध्यान नहीं लगेगा, उसकी वजह से बाकी काम करने का मन नहीं करेगा. इवन टू सो मच ऑफ एक्सटेंड कि आपका दिन में खाना खाने का भी अच्छे से मन नहीं करेगा. तो यू विल बी ऑलवेज बिकरिंग अराउंड कि कब्ज है, कब्ज है, कब्ज है. एंड mostly the family members, they get very irritated. I know that from my personal experience. My mother is constipation humori. Just a second. My mother has this issue since last 20 years, and I know every other day, every once or twice a week, she'll be sitting from morning ki aaj mera pet saaf nahi hua, and then the whole day she stays irritated. उनका बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ भी कोई ना कोई बात पे कुछ ना कुछ झगड़ा चलता रहता है. झगड़ा मतलब थोड़ा इरिटेशन टाइप का. सो आई हैव सीन दिस प्रॉब्लम फर्स्ट हैंड एट माय होम बिफोर आई हैव डन MBBS. सो this is a very prevalent issue. After 50 years old, all of us, 60 to 70% of elders have experienced constipation. So let us find कि what is constipation. जो हम बोलते रहते हैं कब्ज है, वो वाकई में मेडिकल डेफिनेशन में कब्ज है भी कि नहीं है. तो I want to understand from first from you guys. I'll take name because I put everyone on mute. I'll unmute it and I'll take name, and then you let me know if you are facing this problem and what sort of issues that you face. Then we'll see whether it qualifies for that constipation definition or not. So let me start with females first, because they are more predisposed to get this problem. I'll start with the Swarna ji first. Swarna ji. Yeah.
Yeah, I have a severe constipation. I take 3 laxative in a day. First, I take around 5 p.m., 6 p.m. Isabgol with lactofiber to make it little more, tastier. Lactofiber has an orange flavor. So Yeah. 2 teaspoon of Isabgol and 1 teaspoon of lactofiber. Then Hmm. after dinner, I take Pet Safa half a spoon. Then only I get relief. So I have a very bad constipation. कितने सालों से ले रहे हैं आप ये सारे सप्लीमेंट्स? मैंने कुछ ना कुछ तो लेती थी, अभी बढ़ते ही जा रहा है. तो काफी So समय से चल today, today I was seeing some homeopathic doctor in WhatsApp has given a name. I will try that. I thought that I will try that also. Okay. So हफ्ते में, if I have to ask you, if you can be, willing to discuss this issue, हफ्ते में how many times आपका पेट साफ हो जाता है? Usually take it, but if I don't take it, then it's no movement. If you don't take it, then क्या एक दिन में पेट साफ हो जाता है, 2 दिन में हो जाता है, 3 दिन में हो जाता है? That I have never waited that long. If it is not clear, the next day I will, of course, I will take it. Yes. Okay. Okay. Got your issue, ma'am. Okay. Mhm. So next we have another ma'am with us. मैम आपका नाम तो नहीं है, ये रेडमी के नाम से है? Myself is Anita Sharma. Yes, ma'am. Yes, Anita. Actually, कब्ज की प्रॉब्लम पहले तो मुझे थी, मतलब काफी 6-7 साल पहले की बात कर रही हूँ, काफी थी. बट कुछ समय पहले मेरा बहुत वेट गेन करना शुरू कर दिया था मेरा. तो मैंने पता नहीं क्यों ट्राई किया, ऐसे ही शायद अर्ली मॉर्निंग लूक वार्म वाटर ट्राई किया था, एटलीस्ट 2 glasses, राइट? और उसमें थोड़ा कभी कभी मैं नींबू डालती थी और मैं मॉर्निंग में 2 ग्लास जरूर पीती थी. तो विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स के अंदर अंदर मेरा पेट काफी साफ हो जाता था. तो उसके बाद कभी तो एक बार में ही हो जाता था, और नहीं तो मुझे कंटिन्यूअसली 2 या 3 बार मॉर्निंग में ही जाना पड़ता था, एंड मेरा पेट क्लियर हो जाता था. बट उसके बाद जो आधे घंटे 1 घंटे के बाद जो ऐसा लगता था जैसे कि पूरा पेट खाली है और मुझे जल्दी जल्दी अब कुछ लेना चाहिए, नहीं तो मुझे वीकनेस हो जाती थी. ऐसा फील होता था हमेशा. बट पेट मेरा कंटिन्यूअसली साफ होता है, अब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आपका ये रूटीन अभी कंटिन्यू कर रहे हैं कि नहीं आप? कंटिन्यू कर रहे हैं. मॉर्निंग में 2 ग्लास चाय मैं बिना नींबू के भी पी सकती हूँ या नींबू डाल के, लेकिन पीती जरूर. वेरी गुड मैम, वेरी गुड, थैंक यू. कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे पेट साफ करने के लिए? कोई. मैंने पहले लेती थी, बहुत ज्यादा मुझे लेनी पड़ती थी अक्सर, लेकिन अब मुझे कोई नहीं लेती. मैं कोई भी मेडिसिन नहीं, पेट साफ करने से. ओके. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नेक्स्ट आई विल मूव टू तेज जी. हाँ जी सर. हाँ जी सर. You face such issue or not? Cough very rarely. Okay. Agar it happens because of my negligence. Right? We are very much, कहते हैं भुजे बादाम, जिसको मूंगफली कहते हैं. हाँ. मूंगफली जिस दिन खा लेता हूँ, नमकीन और साल्टेड पीनट्स जिस दिन मैंने थोड़े खा लिए, तो नेक्स्ट डे मुझे कफ शुरू हो जाती है. Okay. So then I have to avoid it. Once I avoid, the cough disappears gradually. Okay. रही बात कॉन्स्टिपेशन की, कॉन्स्टिपेशन में I watch for 1 day. Third day I take milk with the हल्दी मीठा. 2-3 दिन लेता हूँ तो then things become normal. Okay. And how about ma'am? मैम को तो नहीं है इशू? मुझे पूछना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं. Okay. But when she started taking this ferrocin, तो उसकी जहाँ एग्जैक्टली वो टैबलेट तो मिली नहीं, दूसरी कोई टैबलेट आई तो उससे उनको ब्लैक कलर्ड थोड़े टाइप को लूज मोशन होने लगे थे. Okay. So we have stopped that, and now she is taking good. ferrocin. Okay. Thank you sir. Let me ask सुरेंद्र जी, हमारे फिटेस्ट एल्डर हैं, that I know. फिटेस्ट नहीं, ये कह सकते हैं कि सब डिजीज के ओनर हैं. But you are fit also sir.
है, कॉन्स्टिपेशन रहती है मुझे, और पहले ज्यादा रहती थी, आजकल कम है। पहले बीच में मैंने बहुत सी चीजें ट्राई की। इससे पहले कि मैं बताऊं क्या मेडिसिन, एक चीज मैं आपको बता दूं, मुझे कभी ये पाइल्स हुआ था। पाइल्स का मैंने नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट किया, उससे ठीक हो गया था, लेकिन पाइलेक्स टेबलेट्स आती है हिमालय की, राइट, तो वो पहले साथ में ली थी, उससे ठीक हो गया था। फिर उसमें लिखा रहता है कि फॉर मेंटेनेंस डोज आप 2 डेली ले लिया करें, तो मैं काफी सालों से ले रहा हूँ पाइलेक्स। उससे क्या होता है कि वो थोड़ा बाउल को रिलैक्स करके वो हेल्प करता है। उसका ये सिस्टम है कि ठीक से आ जाए मोशन तो पाइल्स का प्रॉब्लम कम होता है। राइट, दैट इज देयर थ्योरी। राइट, तो वो मैं अभी भी ले रहा हूँ। उसके साथ में बीच में उससे फिर रुका नहीं था, बाद में कॉन्स्टिपेशन ज्यादा हो गया, तो मैंने एक यूट्यूब से मिसेज ने बताया, वो एक मेथी, अजवाइन और काली जीरी, इसका 4:2:1 का रेशियो में वो बनाया था मिक्सचर। उन्होंने अपने लिए बनाया, नहीं सूट किया तो मैंने लेना शुरू किया, मुझे सूट कर गया। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या हुई, पहले बहुत अच्छा चलता रहा, 1 टीस्पून लेने से मोशन एकदम ठीक हो जाता था। उसके बाद में उस स्पून से थोड़ा बढ़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा स्पून हो गया। तो उसमें क्या था कि वो बढ़ाते जाओ तब वो काम कर रहा था, देन मैं उसको छोड़ दिया। ओके, ठीक है। अभी 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 ले रहे हैं आप कुछ और? अभी मैं ले रहा हूँ ये, एक तो ये है कि गर्म पानी वाला जो है वो सिस्टम मैंने चालू किया हुआ है। मॉर्निंग में पहले 1 गिलास पीता हूँ, उसके बाद में थोड़ा एक्सरसाइज, वॉक वॉक वगैरह करता हूँ, फिर आधा घंटा बाद फिर 1 गिलास गर्म पानी लेता हूँ जी। प्लस रात को थोड़ा सा ये पेट सफा चूर्ण लेता हूँ। इट इज नॉट हाफ ए स्पून, इट इज लेस देन हाफ ए स्पून, थोड़ा सा लेता हूँ। तो इससे मेरा मोशन ठीक है, बल्कि दिन में एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार होता है। इट इज नॉट ए लूज मोशन, लेकिन पेट साफ है। Thank you, sir. Thank you. So many elders have joined today. So I'll start the discussion first, and then जो रह गए उनसे मैं वापस सवाल लूंगा post that. So जो क्रक्स निकल के आया आप लोगों से बात करके, वो ये है कि कुछ लोग जो हैं, मोस्टली 3-4 जो हैं, उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे, और कभी अभी करंट भी ये इशू चल ही रहा है, and there is some mechanism or the other process, or one process or the other they have found in their routine daily habits, जिससे उनको पता चल गया कि क्या चीज जो है वो उनको हेल्प करती है। तो why we have come to this point कि हमें कुछ ना कुछ चीज लेनी पड़ रही है, या कोई दवाई लेनी पड़ रही है, या कोई स्टिमुलेंट लेना पड़ रहा है जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो रही है। ये नेचुरली अब क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बचपन में जब हम 15-20 साल के थे, 30 साल के थे, तो ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं थी। एक टाइम होता है सबका, जैसे आपका, अगर आप कॉन्स्टिपेशन नहीं थी, अगर आप अपने जवानी के दिन याद करेंगे, इफ आई हैव टू से सो, तो सबको एक समय के हिसाब से आ जाता था, पेट साफ हो जाता था। अगर कोई 6 बजे उठता है तो अर्ली मॉर्निंग उनको एक टाइम बना होता है कि उस समय जाना ही जाना है। तो ये अभी ऐसा रुक क्यों गया, ये चेंज क्यों हो गया, ये प्रोसेस बदल क्यों गया? राइट। तो आइडली तो सब लोग चाहेंगे कि अगर मैं 6 बजे उठूं सुबह, तो पहली चीज जाके विद इन हाफ एन आवर में ये मेरा जो डेली का एक रूटीन बन जाए और मेरा पेट अच्छे से साफ हो जाए, सो दैट एक फ्रेशनेस वाली फीलिंग आ जाए सुबह सुबह ही, और पूरा दिन मेरा अच्छे से निकल जाए। तो ऐसा क्यों हो गया? अब इस स्टेज में आके हमें दवाइयाँ क्यों लेनी पड़ रही हैं? स्टेज में आके हमें दूसरे जो प्रोसेस हैं, दूसरी जो हैबिट्स, वार्म वाटर, और कुछ लोगों को सुबह उठ के सिगरेट पीने से रिलीफ हो जाता है, कुछ लोगों को चाय पीनी पड़ती है, पहले कॉफ़ी लेनी पड़ती है, उसके बाद ही पेट का प्रेशर बनता है। बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं हमें कि जब तक मैं सिगरेट ना पीऊँ तब तक मेरा पेट साफ नहीं होता, या जब तक मैं सुबह उठ के चाय ना पीऊँ या कॉफ़ी ना पीऊँ तब तक मेरा पेट साफ नहीं होता। तो ये ऐसे क्यों हो गया? लेट्स डिस्कस अबाउट इट। लेट्स फर्स्ट जल्दी से फिजियोलॉजी जान लेते हैं, ऐसा है क्या, कॉन्स्टिपेशन क्यों है शरीर में, और क्यों हमारे शरीर से ये मोशन जो निकलना चाहिए। तो देखिए, सबको पता है हमारे शरीर के अंदर एक फूड पाइप है, स्टार्ट फ्रॉम आवर माउथ, मुंह से लेके एनस तक ये लंबी फूड पाइप है।
यहाँ से खाना खाते हैं और एनस से जो वेस्ट हो निकलता है खाने का वो बाहर आ जाता है। इन बिटवीन क्या होता है, देर आर स्मॉल स्मॉल स्टेशन, राइट। मुंह से खाते हैं, पहला स्टेशन कहाँ है, स्टोमक पे चला जाता है, फिर दूसरा स्टेशन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ड्यूडेनम से फिर नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तीसरा स्टेशन जो है लार्ज इंटेस्टाइन, और चौथा स्टेशन है इनस के रास्ते बाहर आ जाता है। तो छोटे छोटे स्टेशन है, इन स्टेशन पे खाना थोड़ी थोड़ी देर रुकता है, और ये रुक के यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीजें खाने में हमें चाहिए वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, जो कार्ब्स हमें चाहिए, जो प्रोटीन हमें चाहिए, मिनरल्स वाइटामिन चाहिए, वो इन स्टेशंस पे अलग अलग स्टेशंस पे अलग अलग चीजें एब्जॉर्ब होती हैं। और जब उस खाने में से हम सारी चीजें एब्जॉर्ब कर लेते हैं काम की, तो फिर जो वेस्ट बचता है वो हमारा शरीर उसको बाहर निकाल देता है। तो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, हम सबके शरीर में ऐसा होता है, राइट। तो अब कॉन्स्टिपेशन क्या है? कॉन्स्टिपेशन का मतलब जब ये वेस्ट जो है ये शरीर से बाहर टाइम से बाहर ना निकले। तो हम लोगों की डेफिनेशन कॉन्स्टिपेशन की सबकी अलग अलग है। किसी को अगर दिन में एक बार मोशन पास ना हो तो उनको लगता है कि कब्ज हो गई, किन्हीं को लगता है कि 2 बार दिन में कम से कम होना चाहिए तो नॉर्मल है, नहीं तो कब्ज है। और किन्हीं की डेफिनेशन एज के हिसाब से, उनकी बॉडी हैबिट्स के हिसाब से, बॉडी टाइप के हिसाब से अलग अलग चेंज होते रहते हैं। कई लोगों को दिन में 2 बार जब तक मोशन पास ना हो तब तक उन्हें अच्छा नहीं लगता, तब तक अगर ना हो तो वो कॉन्स्टिपेशन कब्ज खुद को बोलना शुरू कर देते। तो मेडिकल डेफिनेशन जो कॉन्स्टिपेशन की बोलती है वो ये बोलती है कि हफ्ते में कम से कम 3 बार आपका पेट साफ ना हो तो हम उसको कॉन्स्टिपेशन बोलेंगे। तो एज पर मेडिकल डेफिनेशंस इन वन वीक 3 बार कम से कम आपका मोशन पास होना चाहिए, आपका वेस्ट पास होना चाहिए शरीर से। अगर 3 बार हो रहा है, तीन या 3 से ज्यादा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है। 3 से कम बार हो रहा है तो आपको कॉन्स्टिपेशन है। तो मतलब हर 2 दिन में भी अगर आपका 1 बार पास हो रहा है तभी भी आपको मेडिकली आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि अगर 2 दिन तक मेरा वेस्ट अंदर रहेगा शरीर में तो मेरे को नुकसान है, तो मेरे जो उसमें टॉक्सिन्स हैं जो कुछ वापस अब्जॉर्ब हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, खून में टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, ये सारे दिक्कतें हो जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो वेस्ट है वो 2 दिन तक जीआई ट्रैक में ट्रेवल कर सकता है, स्टोर हो सकता है और उसके बाद निकल जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आइडली हम क्या चाहते हैं कि हमारा हर दिन मोशन पास हो, कम से कम 1 बार तो हर दिन जरूर हो, और उसमें भी 6 बजे करना है तो 6 बजे ही हो, वो टाइम ना बिगड़े, राइट। और ये एक ऐसी एक्सपेक्टेशन है हमारी जो, क्योंकि जब हम बड़े होते हैं तो हमारा सारी चीजें एकदम फिट एंड फाइन होती हैं, मोटेलिटी जीआई मसल्स की एकदम सही होती है, तो हर दिन पास हो रहा था, तो हम उस आदत से निकल के अब एज के बढ़ती हुई एज के साथ बढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है कि अगर दिन भर में 1 दिन में नहीं हो रहा, 2 दिन में हो रहा, तो ये दिक्कत वाली बात है, ये कॉन्स्टिपेशन वाली बात है। हालांकि मेडिकली ऐसा नहीं। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन की बात। अब बात करते हैं ये होता क्यों है। मैं एक आपके साथ पीपीटी शेयर करूं, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी अभी। तो ये होता क्यों है? सबसे पहले तो ये इसलिए होता है कि आपके शरीर में फ्लूइड इनटेक कम हो जाती है। आपकी जो डाइट में जो फ्लूइड जितना चाहिए, पानी हम जितना हमें पीना है वो हम कम पी रहे हैं, और पानी की जगह हम लोग ज्यादा सेवन किस चीज का करते हैं? चाय और कॉफी का। तो स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन में जो वाटर इनटेक है, हम लोग कभी भी सीरियसली एक पर्टिकुलर हर दिन एक रूटीन बना के नहीं रखते कि मुझे इतने अगर कोई आपको बोले कि 8 गिलास पानी तो आपको डेली पीना ही पीना है, तो हम ऐसा सोच के नहीं चलते कि हमने पिया कि नहीं पिया, जब प्यास लगी तब पी लेते हैं, अदरवाइज कोई ज्यादा ध्यान देते नहीं है। तो पानी बराबर क्वांटिटी में ना पीने से शरीर में जो स्टूल बनता है वो हार्ड हो जाता है, उसकी जो कंसिस्टेंसी हो जाती है वो हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है और कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो स्टूल है वो आगे कोलन में पास नहीं होता, उसकी मोटेलिटी जो है वो रुक जाता है, उसमें हैवीनेस कम हो जाती है, उसमें सॉफ्टनेस कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो आगे की तरफ मूव नहीं कर पाता। तो सबसे बड़ा इशू जो है वो है डाइट में पानी की कमी होना। तो अगर हम पानी की इनटेक
बाई फोर्स या बाई लॉ या बाई रिलीजियसली हम कम से कम हमें 8 ग्लास पानी दिन का पीना ही पीना है। तो मिनिमम अगर इतना पानी का इंटेक हम कर लें तो ये कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्प मिलेगी, जो आपका स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाएगा, तो ये स्टूल में पास करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो नंबर 1 जो रीजन है वो है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होना स्टूल में। इसलिए जब हम खाना खाते हैं या पूरे दिन का जो हमारा खाने की हैबिट रहती है उसमें अगर पानी की कमी हो तो हमारा जो स्टूल है वो हार्ड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, इसकी वजह से वो अच्छे से पास नहीं होगा। और इसके नुकसान क्या है, नुकसान पे बात करते हैं, पहले ये बात डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो रीजन था वो हमने डिस्कस करा कि पानी की कमी की वजह से। दूसरा जो रीजन है वो है खाने में डाइटरी फाइबर्स। जो फाइबर है उनकी अप्रोप्रिएट क्वांटिटी जितनी होनी चाहिए, रेकमेंडेड जितनी क्वांटिटी हमें बताई गई है उतनी क्वांटिटी ना होने का एक का जो कमी है खाने में, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। तो फाइबर वाली चीजें आपको हमेशा, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको हमेशा बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन करेंगे, वो आपको अपनी डाइट में फाइबर बढ़ाइए, फाइबर बढ़ाइए, सैलेड खाइए, फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, ये चीजें बढ़ाइए ताकि आपके जो स्टूल की कंसिस्टेंसी है वो बेटर हो, स्टूल फॉर्मेशन बेटर हो और कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो। ये नेचुरल तरीका है, ये शरीर का नेचुरल मैकेनिज्म है डाइजेशन का। और जो उस दिन मैंने एक दिन बात कर रहा था कि एक आपकी जो थाली है वो एक बैलेंस्ड थाली दिखनी चाहिए। बैलेंस थाली का मतलब उसमें जितना रिकमेंडेड कार्ब्स हैं उतनी होनी चाहिए, जितना रिकमेंडेड फैट है उतना होना चाहिए, जितना रिकमेंडेड प्रोटीन है उतना होना चाहिए, और जितना रिकमेंडेड फाइबर इनटेक खाने में होनी चाहिए वो जरूर होना चाहिए। अदरवाइज कोई ना कोई दिक्कत होती रहेगी। और बैलेंस डाइट में आपका प्रोटीन कम है तो आपके मसल स्ट्रांग नहीं होंगे, मसल वीकनेस होगी, और जो प्रोटीन से चीजें बनती है वो उनमें कमी रह जाएगी। और अगर फाइबर की कमी होगी तो आपका जो सबसे एक खास दिक्कत है कॉन्स्टिपेशन की, वो जरूर होगी आपको। तो फाइबर डाइट में कमी होने से आपको कॉन्स्टिपेशन होती है। डाइट आपकी डेली वाटर इनटेक कम होने से आपको कॉन्स्टिपेशन होती है। जब हम 30 साल के होते हैं, 40 साल के होते हैं, तो उस समय हम काफी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना, वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी आज की डेट में उस समय के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम हो गई है। और जब ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते थे तो हम ज्यादा वाटर इनटेक करते हैं। जितना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी होगा हमें उतनी ज्यादा प्यास लगेगी, तो बाई नेचर हम ज्यादा पानी पीते हैं। अभी अगर हम मोस्टली घर पे बैठे हुए हैं तो पानी की इनटेक ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। हम तभी पानी पीते हैं जब हमें प्यास लगती है, जब हमें सिग्नल मिलता है कि आप प्यासे हैं, आप पानी पीजिए। अदरवाइज आप रूटीन में पानी नहीं पिएंगे। तो ये पानी की कमी होने से कॉन्स्टिपेशन बढ़ गई। दूसरा, हमारी डाइट में फाइबर कम होने से कॉन्स्टिपेशन बढ़ गई। नॉर्मल फाइबर आपका शरीर डेली इनटेक कितना होना चाहिए, 24 इनटेक, आप ये वाली वैल्यू ना लेना, ये चेंज हो गई है। तो अभी जो वैल्यू आपको अच्छे से कॉन्स्टिपेशन अगर रिलीव करना है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, तो आपको 25 से 35 ग्राम के बीच में डेली इनटेक फाइबर का होना चाहिए, राइट। फीमेल्स में अराउंड 25-30 और मेल्स में अप टू 35 ग्राम्स तक डेली इनटेक फाइबर का जरूर होना चाहिए। तो ये फाइबर आएगा कहाँ से, ये हमारी डाइट में फाइबर कहाँ से आएगा? तो बहुत सिंपल चीजें हैं जो हम डाइट में ऐड करेंगे और एकदम फाइबर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो फाइबर करता क्या है? फाइबर लेने से जो हम एक बोल रहे हैं कि पानी की कमी हो रही है, अगर फाइबर लेंगे तो फाइबर पानी को रोक के रखेगा। फाइबर जो स्टूल में जो वेस्ट प्रोडक्ट है डाइजेशन का, उसमें पानी को रोक के रखेगा और जो स्टूल की कंसिस्टेंसी है उसको सॉफ्ट रखेगा। सॉफ्ट होगा तो इजीली बाहर आ जाएगा, हार्ड होगा तो वो इतना इजी बाहर नहीं आएगा। वो जो कॉलन है उसकी सरफेस पे जा जाके लगेगा और वहां पे पंक्चर करेगा, ब्रेक करेगा स्किन को, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें फिशर, एनल फिशर होते हैं जो हेमोराइड्स में बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हार्ड स्टूल की वजह से प्रॉब्लम होती है। इसको सॉफ्ट रखने का बहुत आसान तरीका है, डाइट में पानी ज्यादा लें और फाइबर वाली चीजें ज्यादा खाएं। क्या चीजों में फाइबर ज्यादा होता है? फ्रूट्स में फाइबर ज्यादा होता है। आपका एवोकाडो है जो सबसे ज्यादा फाइबर इनटेक इसमें है। एप्पल में फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। होल ग्रेन जो आटा है उसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है। जितना रिफाइंड आटा हम करते जाएंगे फाइबर उसमें से निकलता जाएगा। जिसका आप एग्जांपल लेंगे, जितनी सफेद रोटी होगी उसमें उतना ही कम फाइबर होगा, जितनी ब्राउन रोटी होगी उसमें उतना ज्यादा फाइबर होगा। तो कोशिश करें कि
गेहूं जो है वो होल ग्रेन का गेहूं आटा जो है वो लें आप। उसमें जो उसका छिलके हैं वो ज़्यादा रिफाइंड ना हो, वो रोटी जो है ब्राउन रंग की बने, तो उसमें फाइबर अच्छी क्वांटिटी में होगा। तो आप जो डेली रोटियां खा रहे हैं उसी में से आपकी जो रिकमेंडेड फाइबर की क्वांटिटी है वही निकल के आ जाएगी। इसके साथ आपको फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल खाने। तो फाइबर इनटेक जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तीसरा क्या रीजन है? इनएडुकेट एक्सरसाइज, जो हम हर दिन बात करते हैं। हर दिन बात करते हैं कि एक्सरसाइज की कमी की होने से कितनी सारी दिक्कतें हो रही हैं। और अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? जैसे हम कल पढ़ रहे थे थायराइड वाला इशू, कि जिसके शरीर में थायराइड हार्मोन कम होता है उसके शरीर में मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम हो जाती है। मेटाबॉलिक रेट का कम होने का मतलब क्या है? कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। और जितना स्लो प्रोसेस होगा उतना कम स्टूल बनेगा, उतना लंबा समय लगेगा स्टूल बनने के लिए। तो एक्सरसाइज क्या करती है? मेटाबॉलिक प्रोसेस को बढ़ा देती है, रेट को फास्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारा जो स्टूल फॉर्मेशन है वो भी अच्छे से बनता है, जल्दी बनता है। तो हमें जो लंबा समय वेट करना पड़ेगा स्टूल फॉर्मेशन के लिए वो कम हो जाएगा। तो एक्सरसाइज एक ऐसा टूल है, एक ऐसा हथियार है हमारे पास जो सारी क्रोनिक बीमारियों पे अच्छा काम करता है, उनको रोकता है। और कॉन्स्टिपेशन इज वन सच प्रॉब्लम जो एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करने से जिसमें हेल्प मिलती है। तो तीन चीजें पढ़ ली जो हमें प्रॉब्लम कर रही थी और उनका सोल्यूशन भी साथ साथ में। एक तो पानी कम पीने से हमें कॉन्स्टिपेशन होती है, पानी हम बराबर इनटेक करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन बेटर हो जाएगा। दूसरा, डाइट में फाइबर कम की कमी की वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। फाइबर वाली चीजें जो अभी बताई वो हम डाइट में रोज ऐड करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन बेटर हो जाएगा। तीसरा जो है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हम अच्छे से रोज डेली की एक रूटीन बना के करते हैं तो भी हमारी कॉन्स्टिपेशन बेटर हो जाएगी। ये तीन चीजें अगर आप करेंगे तो आपकी जो डिपेंडेंसी है मेडिसिन पे वो कम होती जाएगी। तो ये बहुत बेसिक तीन चीजें हैं जो आपको करनी है। अब आगे इस पे बात करते हैं। एज के साथ साथ जो हमारा एक तो थायराइड की इशू होते हैं, और एज के साथ दूसरा जो है, एज के साथ साथ चीजें शरीर में कमी होती जाती है। तो जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारा जो मसल्स हैं, जीआई के मसल्स हैं, हाँ, वो इतने ज्यादा उनकी टोन कम हो जाती है, उनका फंक्शन जो है अभी उतना स्ट्रांग नहीं रह जाता। तो हमारा जो जीआई ट्रैक का मसल है ये क्या करता है? एक मूवमेंट के थ्रू खाने को आगे बढ़ाता रहता है। जैसे ही हम खाना खाएंगे तो इनका काम क्या है? कॉन्स्ट्रिक्ट होते रहना और खाने को नीचे की तरफ धकेलना, राइट? जिसको पेरिस्टालसिस बोलते हैं। तो ये पेरिस्टालसिस क्या है? एक इनवॉलेंटरी मोशन है। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो मसल्स हैं कॉन्स्ट्रिक्ट होके इस खाने को नीचे की तरफ धकेलते हैं ग्रेविटी के साथ। तो हमारा खाना मुंह से पहले स्टोमक में जाता है, फिर स्टोमक के मसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर करके इसको आगे ड्यूडिनम में भेजते हैं, फिर ड्यूडिनम के मसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो के इसको आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं, एंड वहां से फिर लार्ज इंटेस्टाइन से बाहर आ जाता है। लेकिन एज के बढ़ने के साथ साथ इन मसल्स की जो काम करने की क्षमता है वो कम होती जाती है, इनकी मसल टोन कम होती जाती है। तो इसलिए लंबा समय लगता है हमें ये डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, और अल्टीमेटली हमें लगता है कि एक दिन में हमारा पेट साफ नहीं हुआ, हमें कॉन्स्टिपेशन हो गई। तो इसलिए हमने बोला कि मिनिमम 2 दिन में भी अगर आपका पेट साफ हो रहा है तो वो नॉर्मल ही कहलाएगा, वो हेल्दी क्लीनिंग ऑफ गट ही कहलाएगा। तो ये क्यों? क्योंकि एज के साथ साथ बाय नेचर ही हमारा ये प्रोसेस स्लो होता जा रहा है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बाय नेचर हो रहा है। तो डोंट वरी, अगर आपका 2 दिन में भी एक बार अच्छे से पेट पूरा साफ हो रहा है तो आपका वो कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में नहीं है। तो डोंट वरी अबाउट। तो नेक्स्ट जो है सिम्टम्स क्या है, क्या क्या कैसे कैसे पता चलो। और ये तो सिम्टम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग इतने लंबे समय से इस समस्या से लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, तो आपको पता ही है कि मेरे को क्या होता है जब मुझे कॉन्स्टिपेशन होती है। हालांकि बहुत सारे जो इसके सिम्टम्स हैं वो साइकोलॉजिकल है, वो हमारी सोच के साथ ओवर द टाइम डेवलप हो चुके हैं। तो लेकिन कुछ जो चीजें हैं वो एक्चुअल में हो सकती हैं। लंबी कॉन्स्टिपेशन से आपको हेडेक रह सकती है, हाँ, डल हेडेक, सारा दिन छोटी छोटी हेडेक जो रहती है वो इरिटेबिलिटी से, हेडेक और इरिटेबिलिटी दोनों चीजें हो सकती हैं। पेट में ज्यादा लंबे समय तक ये स्टूल रहेगा तो एब्डोमिनल ब्लोटिंग हो जाएगी, मतलब गैस फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगी,
पानी लंबे समय तक रिटेन होता रहेगा तो आपको लगेगा कि मेरा पेट जो है फूला फूला सा है, फुलनेस पेट में रहेगी, फूला फूला सा महसूस होगा, गैस ज्यादा बनेगी, तो गैस पास भी ज्यादा होगी। और क्या इशू हो सकता है, आपको लोअर बैक पेन हो सकती है, लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन रहेगी आपको तो आपको लोअर बैक पेन जैसी एक सिम्टम आता है, वो इसके साथ एसोसिएट हो सकता है। और दूसरा आपको लगेगा हमेशा कि मेरा पेट साफ नहीं हुआ तो मेरे को एक अर्ज है, मेरे को जाना है, तो आप बार बार जाएंगे वॉशरूम, आप बैठे रहेंगे सीट पे, लेकिन आपका जो कंटेंट है वो बाहर नहीं आएगा। तो लंबे समय तक सीट पे बैठे रहना लेकिन पेट साफ ना होना, ये और इसकी बार बार वॉशरूम जाने की फीलिंग, तो ये भी एक इसका एक सिम्टम है। और क्या हो सकता है, आपको पेन हो सकती है जब आप पेट साफ करने के लिए जा रहे हैं सुबह या शाम को, जब भी आप जाते हैं तो मोशन पास होने के समय आपको पेन हो सकती है। ये यूजुअली क्यों होता है, जब स्टूल हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है, तो ये सख्त स्टूल जब हमारे रेक्टम और एनस की वॉल्स के साथ टकराता है तो वहां पे पिंच करता है, वहां की स्किन को ब्रीच करता है, ब्रेक करता है, जिसकी वजह से पेन होती है। और ओवर द टाइम ये पेन की वजह से आपको डर लगेगा मोशन पास करने में, आपको लगेगा कि जब भी मैं मोशन पास करने जाता हूं तो मुझे पेन होगी, तो आप ज्यादातर उसको कंट्रोल करके रखेंगे, आप ज्यादातर उसको दबा के रखेंगे, आपको इस डर की वजह से आप मोशन पास करने नहीं जाएंगे। और इसकी वजह से लंबे समय तक ये अंदर रहेगा तो आपकी एक आदत बन जाती है, मतलब ये डर की वजह से एक मोशन ना पास करने की एक अंदर से आदत हो जाती है, जिसकी वजह से जहां जहां कट लग गए वहां स्टूल रहेगा और वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको एनल फिशर कहते हैं। फिर वापस से जब वो हॉट स्टूल वहां पे टच करेगा तो वहां स्किन ब्रीच हो जाएगी और वहां से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, जो बाद में जिसको हम पाइल्स बोलते हैं या जो बवासीर बोलते हैं हिंदी में। तो ये क्या है, ये जो वहाँ का जो स्किन है एनस के नजदीक, रेक्टम के नजदीक, वहाँ पे हार्ड स्टूल बार बार जाके टकरा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ की स्किन जो है वो कमजोर हो गई है और ओवर द टाइम उसमें कट लग जाते हैं, जिससे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। ब्लीडिंग होगी, वहां पे स्टूल होगा तो वो जगह में इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है, पस फॉर्मेशन हो जाती है, ओवर द टाइम वहां लंप्स बन जाते हैं जो हेमोराइड्स जिनको हम बोलते हैं। तो उसका इलाज बाद में सर्जरी करा के ठीक करना पड़ता है, या कुछ दवाइयाँ होती हैं जो ऐसे हमारे एक सर खा रहे थे, तो वो दवाइयाँ जो हैं वहाँ की सूजन को कम करके रखती हैं, वहाँ के मसल्स को स्मूथ रखती हैं, वहाँ उसकी सूजन को कम कर देती हैं, पेन को कम कर देती हैं, तो जो हमें हेल्प करता है स्टूल पास करने में, मोशन पास करने में। तो ये सारी दिक्कतें हमें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से होती हैं। जो लोग 65 से अबव हैं उनमें बहुत कॉमन है ये चीजें होना, एक तो एज के साथ साथ हमारा मेटाबॉलिक रेट कम हो गया इसलिए, और दूसरा ये सारी चीजों की कमी, हम पानी कम पीने लग जाते हैं, हम फाइबर कम खाने लग जाते हैं, हम एक्सरसाइज कम करते हैं, जिसकी वजह से ये ज्यादा होता है। अब एक जो टॉपिक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्रॉनिक यूज ऑफ लेग्जेटिव्स, जो हम दवाइयां खा रहे हैं। कई कई सारे लोग, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, मैम जो है वो 3 3 तरह की दवाइयां लेती हैं। हाँ, दवाइयाँ मतलब अलग अलग तरह के सप्लीमेंट्स लेना जो हमें हेल्प करता है मोशन को पास करने में, विद बिकॉज ऑफ वेरियस डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे जो लूज लेते हैं रात को, एक दूसरी मेडिसिन आती है ड्यूपोलैक, वो लेते हैं, इसबगोल लेते हैं। तो ये अलग अलग तरह की दवाइयाँ, सिरप है जो रात में सोने से पहले ले लेंगे, जो हमें हेल्प करता है सुबह में मोशन पास करने में। तो अगर मेरे को कॉन्स्टिपेशन है, मैंने आज ये 2 चम्मच दवाई रात में पी, सुबह मेरा मोशन पास हो गया, तो मेरे लिए तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। तो मैंने 2 चम्मच दवाई पी, मेरा सुबह में मोशन पास हो रहा है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो ये अब मुझे ये दवाई लेने की आदत बन गई, तो मैं या तो हर दिन ये दवाई ले रहा हूँ या हर दूसरे दिन ये दवाई ले रहा हूँ। तो ओवर द टाइम क्या होता है, लंबे समय तक ये दवाइयां लेने से हमारा जो शरीर का नेचुरल मैकेनिज्म है, जो मैंने अभी डिस्कस कर रहा था, पेरिस्टालसिस, जो मसल मूवमेंट होती है जो स्टूल को आगे बढ़ाती है, तो वो जो नेचुरल प्रोसेस है वो प्रोसेस सप्रेस हो जाता है, क्योंकि हम तो दवाई लेके वो मोशन पास करा रहे हैं, तो नेचुरली जो हमारे शरीर में होता है वो सप्रेस हो जाता है, वो होना कम हो जाता है। तो फिर आप जब दवाई छोड़ेंगे तो आपको मोशन ही पास नहीं होगा।
तो ओवर द टाइम ये आपकी जो डिपेंडेंसी है इन मेडिसिन पे इतनी बढ़ जाएगी कि बिना मेडिसिन खाने से आपको, बिना दवाई पीने से आपको मोशन पास ही नहीं होगा। तो ये हमें बचना है। ये कॉन्स्टिपेशन की दवाई इज वन सच मेडिसिन विच इज अब्यूज्ड थ्रू आउट द नेशन, थ्रू आउट द इंडिया। ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलती हैं, आप जाएंगे केमिस्ट पे, केमिस्ट के पास मुझे कॉन्स्टिपेशन है, वो आपको किसी भी कैटेगरी की एक बोतल दे देगा कि मैडम सर आप रात में पी लीजिए, सुबह आपका पेट साफ हो जाएगा। तो विच इज अ वेरी बैड थिंग टू डू, बिकॉज हम हमारा अपनी डिपेंडेंसी जो है वो मेडिसिन पे डाल रहे हैं। हमारा जो मोशन पास करने का प्रोसेस जो नेचुरल है उसको हम सप्रेस कर रहे हैं, और हम एक बाहर से चीज ले रहे हैं जो हमें हेल्प कर रही है। ओवर द टाइम जिस दिन आप ये दवाई बंद करेंगे उस दिन आपका मोशन पास होना जो है वो डिले हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको बिना दवाई के मोशन पास होगा ही नहीं। तो क्या क्या दवाइयां हैं जिसके बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ दवाइयां जो हैं इसमें मैं रेकमेंड भी करूंगा, और कुछ दवाइयां मैं बोलूंगा आपको इसको अवॉइड करिए। तो कॉमन टर्म क्या है, इसको लेग्जेटिव बोलते हैं। लेग्जेटिव मतलब जो हेल्प करते हैं स्टूल को सॉफ्ट करने में, स्टूल की मूवमेंट को बढ़ाने में, ताकि ये मोशन जो है आपके शरीर से बाहर निकल जाए। तो अलग अलग तरह के लेग्जेटिव होते हैं, आपके इंटेस्टाइनल मसल की टोन को बढ़ा देते हैं। जो हम बात कर रहे थे कि ओवर द एज टोन कम हो जाती है, उस टोन को इम्प्रूव करते हैं, उस टोन को इनहेंस करते हैं ताकि आपका बाउल फंक्शन हो जाए। और जो लेग्जेटिव है ये आपकी सॉरी अब्यूज करने से आपको फ्लूइड इनटेक बढ़ जाएगा, फाइबर इनटेक बढ़ जाएगा, एक्सरसाइज जो है उसको सप्रेस करेगा। तो लेट मी go to the laxative slide. Wait. Just hold on, please. Yes. So we just take help of this PPT to explain you better. So लेग्जेटिव बहुत सारी दवाइयां हैं। एक तो लेग्जेटिव है जो सॉफ्ट स्टूल को प्रमोट करते हैं, तो आपके स्टूल को सॉफ्ट कर देते हैं। दूसरी क्या है, कैथार्टिक्स हैं जो सॉफ्ट और वाटरी स्टूल को प्रमोट करते हैं। जो इंटेस्टाइनल मसल की जो कॉन्स्ट्रिक्शन है उसको एनहेंस करते हैं। एंड समटाइम्स अगर आपको कोई डाइजेशन कॉन्स्टिपेशन वाली दवाई खाने से क्रैम्पिंग हो रही है, तो उसका रीजन ये है कि वो जो इंटेस्टाइन के मसल की जो नेचुरल टोन है कंस्ट्रिक्ट करने की, पेरिस्टालसिस करने की, उसको बढ़ा रहा है, उसको ट्रिगर कर रहा है। इसलिए जो मसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं और आपको जो फीलिंग आ रही है वो क्रैम्पिंग वाली फीलिंग आ रही है। तो ये अवॉइड करने चाहिए। तो अल्टीमेटली इनका रोल क्या होता है कि ये आपके शरीर जो गट में फ्लूइड को रिटेन करके रखते हैं, वाटर को रिटेन करके रखते हैं, ताकि आपका जो स्टूल है वो हैवी हो, वो सॉफ्ट हो, और वो आगे बढ़ता जाए, एक जगह पे रुके ना। और दूसरा जो फाइबर वाले लेग्जेटिव होते हैं वो उसके स्टूल की फुलनेस बढ़ाते हैं और अल्टीमेटली उसको सॉफ्ट करके निकालते हैं। तो वन सच लेग्जेटिव दैट आई वांट टू टॉक इज इसबगोल। इसबगोल बहुत सारे लोगों ने लिया होगा अपने लाइफ टाइम में। इसबगोल जो है रेडली अवेलेबल है, केमिस्ट की दुकान पे मिल जाता है। और आई वुड से कि आउट ऑफ ऑल द लेग्जेटिव्स, ऑल द मेडिसिन्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन अवेलेबल इन द मार्केट, Isabgol is the one medicine which I will recommend. Isabgol is one supplement that I will recommend that you can have it. Basically ये हस्क होता है, basically ये फाइबर की तरह का होता है जो हम पानी में डाल के, पानी में घोल के पी लेते हैं, और ये अंदर जाके गट में जाके जो हमारा डाइजेस्टिव स्टूल है, जो डाइजेशन के बाद जो बनता है वेस्ट प्रोडक्ट, उसमें जाके मिलके उसकी फुलनेस को बढ़ाता है, उसको सॉफ्ट करता है, और उसमें जो पानी है, जो फ्लूइड है, उसको रिटेन करके रखता है। तो जब हमारा स्टूल पास होगा तो वो स्टूल काफी सॉफ्ट और काफी हैवी होगा, हैवी इन नेचर। मतलब जो स्टूल पास हो रहा है वो हमें काफी फुल स्टूल पास होगा, पतला
हार्ड स्टूल पास नहीं होगा। पतला और हार्ड स्टूल अगर हम पास करेंगे तो उसकी जो वजह से नुकसान है वो मैंने डिस्कस करे, वो पाइल्स हो सकती है, हेमोराइड हो सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन भी है, और दूसरा कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमें दूसरी बीमारियां भी लग रही हैं, तो उसको अवॉइड करता है। दूसरी तरह के जो लैक्सेटिव हैं, जैसे लैक्टुलोस है, जो लूज सिरप आप पीते हैं रात में, तो ये इनका जो काम है ये ऑस्मेटिक काम है, मतलब ये पानी को खींचते हैं शरीर में, गट्स में पानी को ऑब्जॉर्ब कम होने देते हैं, और जिसकी वजह से आपका जो स्टूल है काफी सॉफ्ट पतला पानी जैसा निकल के सुबह में पास होता है। तो आई वुड से कि लूज वगैरह के जो ऑस्मेटिक लैक्सेटिव है उनको अवॉइड करिए। यूजुअली ये तब दिए जाते हैं जब आप हॉस्पिटल में अभी किसी वजह से एडमिट हो, तो आपको अर्जेंट ऑपरेशन है कल को, तो आपका पेट साफ करना है, इसलिए ये ओवरनाइट दे देते हैं हम कि ताकि आपका सुबह में पेट साफ हो जाए। लेकिन अगर आप डे टू डे डेली रूटीन में कोई चीज ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इसबगोल ऐड कर सकते हैं। इसबगोल आपके लिए एक अच्छा सोल्यूशन है जो आगे चल के आपको ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। एक से और कुछ घर के नुस्खे होते हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप कर्ड का इस्तेमाल करें। कर्ड में प्रोबायोटिक जो बैक्टीरिया होता है वो हेल्प करता है डाइजेस्टिव प्रोसेस को फास्ट करने में। तो हम जो हमारा देखिए, जो कॉन्स्टिपेशन होने का बेसिक कारण है जो हमने डिस्कस करा, स्लो मेटाबॉलिक रेट, उसको अगर हम फास्ट कर देंगे तो अपने आप जो स्टूल फॉर्मेशन का प्रोसेस है, जो रेट है वो बढ़ती जाएगी, और रेट बढ़ेगी तो आपको जल्दी जल्दी मोशन पास होगा। तो आप अपने उसमें खाने में कर्ड सुबह में आप ऐड कर सकते हैं। और क्या चीजें हैं ऐसी जो खाने में आप ऐड करेंगे तो बेटर आपको रिजल्ट निकलेगा। तो एक चीज जो हमने मैडम ने बताई थी कि वो सुबह उठ के गर्म पानी पीते हैं नींबू डाल के या कुछ और चीज डाल के, जिससे उनको हेल्प मिलती है। तो बेसिकली ये होता क्या है, ये काम कैसे करता है? यस यस मैम। तो ये काम कैसे करता है? दीज एक्ट्स एज ए स्टिमुलेंट। जब हम रात भर सो के उठते हैं सुबह में, तो एक हमें ट्रिगर चाहिए, एक स्टिमुलेट करने के लिए हमारी जीआई ट्रैक को, ताकि उसकी जो कंस्ट्रिक्शन वाली मूवमेंट है वो एकदम शुरू हो जाए। तो कई लोगों में वो ल्यूकवार्म वाटर वर्क करता है, कई लोगों में कोई कॉफी या चाय वर्क करती है, और कुछ लोग जो बोलते हैं कि मेरे स्मोकिंग करने से होता है, उन लोगों में वो जो ट्रिगर है वो स्मोकिंग इनिशिएट करती है। तो हर किसी के शरीर में एक ऐसी चीज, एक ऐसा ट्रिगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है विद देयर हैबिट्स, जो सुबह उठ के जो जीआई ट्रैक की मूवमेंट है, जो जीआई ट्रैक के मसल्स की टोन है, उसको इंक्रीज करता है, उसको ट्रिगर करता है, ताकि जो स्टूल इकट्ठा हो रखा है कॉलम्स में वो आगे की तरफ बढ़े। तो कुछ लोगों में सुबह उठ के एक गिलास पानी पीना उसको ट्रिगर कर देता है, कुछ लोगों के सुबह उठ के गर्म पानी पीना ट्रिगर कर देता है, कुछ लोगों में चाय ट्रिगर कर देती है। तो आई वुड से कि आपके लिए जो भी चीज काम कर रही है, जो भी चीज आपको हेल्प कर, कीप डूइंग इट। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सुबह उठ के गर्म पानी ही पीना है, या आपको सुबह उठ के चाय ही पीनी है, आपको सुबह उठ के केला ही खाना है। कोई भी चीज जो आपके लिए इस समय, इस उम्र में जो आप पे वर्क कर रही है, उसको कंटिन्यू करिए। लेकिन अगर आप नहीं ले रहे हैं सुबह उठ के कोई चीज, तो लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लंबे समय तक जब हम रात भर सो के उठते हैं तो हमारा शरीर जो है बेसिकली स्टार्टिंग मोड में होता है। जैसे कंप्यूटर को सुबह उठ के ऑन करेंगे तो सारी चीजें पहले शुरू होना जीरो से स्टार्ट होती हैं। तो जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमारा जीआई ट्रैक का जो फंक्शन है वो भी जीरो से स्टार्ट होता है। तो वी नीड समथिंग टू स्टिमुलेट इट। तो अच्छी चीजें क्या डेवलप कर सकते हैं आप, अगर आप सुबह उठ के आपकी कोई रूटीन नहीं है, तो ल्यूक वार्म वाटर, बीच में थोड़ा सिट्रस चीज डाल के, लेमन एंड ऑल, दैट विल कवर फॉर योर विटामिन आल्सो। दिन की पूरी विटामिन की इनटेक भी हो जाएगी उसमें, और आपका एक जो स्टिमुलेट करना है जीआई ट्रैक को वो भी हो जाएगा। तो सुबह उठ के आप अगर रूटीन में नहीं फॉलो कर रहे तो आप करना शुरू कर दीजिए कि उठ के सबसे पहले एक गिलास पानी, ल्यूकवार्म वाटर, उसमें जो आपके लिए हेल्पफुल चीज है जो आपके डॉक्टर ने बताई है, किसी और बीमारी के लिए वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप नींबू डालें या हनी डाल लें। तो जो भी चीज आप पे वर्क करती है वो डाल के जरूर पिए। उसके बाद थ्रू आउट द डे मेक श्योर करिए कि कम से कम 8 गिलास पानी, 8 गिलास पानी आप थ्रू आउट द डे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करिए कि आप जरूर पिए। खाना खाने के इमीडिएटली बाद नहीं पिए,
खाना खाने के आधे घंटा वेट करने के बाद पानी ले सकते हैं। कुछ लोगों का आदत है कि खाना खा के पानी पीते हैं, वो एक्चुअली जो खाने की एब्जॉर्प्शन है उसमें हिंडर करता है, जो अच्छे न्यूट्रिएंट है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो कम से कम आधा घंटे बाद आप पानी पिए तो वो ज्यादा बेटर है। और 8 ग्लास पानी जरूर पिए। अगर आप 6 बजे 7 बजे उठ रहे हैं सुबह में, तो शाम के 7-8 बजे तक ये डिस्ट्रीब्यूट कर लें। रात को सोने से पहले पानी ना पिए, क्योंकि फिर आपको रात में उठ के बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, जो आपकी नींद को डिस्टर्ब करेगा, क्वालिटी ऑफ स्लीप आपकी खराब होगी। तो मेक श्योर करें, अगर आप 7 बजे या 6 बजे सुबह उठ रहे हैं, तो शाम के 7-8 बजे तक ये आपके 8 ग्लास पानी के इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि शाम के 7-8 बजे तक आपका इस पानी का इंटेक पूरा हो जाए। दूसरा, आप खाने में फाइबर ऐड करना है, तो हर दिन एक फल तो जरूर खाना ही खाना है। चाहे आप डायबिटिक हैं, नॉन डायबिटिक हैं, फल आपको जरूर खाएं। लेकिन जो डायबिटिक है वो क्वांटिटी कम रखेंगे, जो नॉन डायबिटिक है वो 1 से 2 फल खा सकते हैं। तो सेब खाइए, आपके ग्रेप्स हैं ये खा सकते हैं आप। डायबिटीज वाले जो लोग हैं वो मैंगो लीची अवॉइड करिएगा। तो सैलेड ऐड करिए। कैरेट बहुत अच्छा सोर्स है फाइबर का, उसको ऐड करिए सैलेड में। खीरा ऐड करिए, मूली ऐड करिए, आपके जो शिमला मिर्च है उसको ऐड करिए। तो खाने के साथ सैलेड को जरूर अपनी प्लेट में रखें। अगर आप खाना 2 रोटी खा रहे हैं तो उसके साथ में सैलेड आपका जरूर होना चाहिए, दोपहर में भी और शाम में भी। दही खाने का सबसे आइडियल टाइम है सुबह ब्रेकफास्ट के साथ। तो ब्रेकफास्ट में अगर आप 1 कटोरी दही लेते हैं तो उसमें जो प्रोबायोटिक आपके निकल के आएंगे वो पूरा दिन आपकी डाइजेशन में हेल्प करेंगे। तो सबसे बेस्ट टाइम है दही खाने का सुबह ब्रेकफास्ट के साथ। और अगर आपको इस उम्र में दूध पच रहा है, टोन वाला डबल टोन दूध, तो वो आधा ग्लास रात में पी के सोते समय जरूर लें। वो एज ए लेग्जेटिव काम करेगा, वो एज ए सॉफ्टनर काम करेगा आपके स्टूल के लिए। आपका स्टूल जो है वो सॉफ्ट होगा उससे, डबल टोन मलाई वगैरह निकाल के उसमें से। तीसरी चीज क्या करनी है, जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, रिपीटेडली वी टॉक इन एवरी सेशन कि एक्सरसाइज 30 मिनट दिन की कम से कम करनी ही करनी है। उसके बहुत सारे फायदे हैं, और आज का जो टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन में तो बहुत ही ज्यादा फायदा है उसका। तो ये 3 चीज करेंगे, और एक चौथी चीज करनी है कि जब अर्ज हो पास करने की तब रोकना नहीं है। कुछ आदतें कुछ काम की वजह से जवानी में या हमारे वर्क नेचर की वजह से कभी ऐसा हो सकता है कि आपको किसी समय अवेलेबिलिटी नहीं है, आप मीट सकते हैं। इस वजह से भी आपको आगे जाके कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। क्योंकि जो मोशन पास करने की अर्ज हो रही है, वो हमारा दिमाग हमें सिग्नल देता है कि अभी आपका स्टूल एक ऐसी पोजीशन में जा चुका है जहां से अब ये निकल जाना चाहिए। और अगर हम उसको रोक के रखेंगे, मसल्स को दबा के रखेंगे, कंस्ट्रिक्ट करके रखेंगे, तो लंबे समय तक उस एरिया के मसल जो हैं फिर वो उस सिग्नल को पकड़ेंगे, वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन हमेशा रहेगी, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन होगी। तो इसलिए वो बोलते हैं बड़े बुजुर्ग की, लोहा जब गर्म हो तभी हथौड़ा मार देना चाहिए। तो जब आपको फीलिंग हो तभी आप अपना समय निकाल के अपना जहाँ पे भी मीटिंग में है एक्सक्यूज करके बाथरूम में जाके जरूर इसको पास करें, ताकि हमें आगे चल के उससे दिक्कत ना हो। तो ये सिंपल 3-4 चीजें अपनी रूटीन में लाने से आपको देखेंगे, आपको महसूस होगा कि आपकी डिपेंडेंसी जो है मेडिसिन से वो कम हो रही है। लॉन्ग टर्म मेडिसिन खाना अल्टीमेटली आपके शरीर में दिक्कतें करेगा, आपको कॉलन के इश्यूज होंगे, आपको इनल फिशर्स हो सकते हैं, हेमोराइड हो सकते हैं, और कॉलन कैंसर भी हो सकता है। एक चीज मैं डिस्कस आपसे बात करना चाहूंगा कि 50 साल 55 साल के बाद अपनी साल में एक बार कोलोनोस्कोपी भी जरूर कराएं। कोलोनोस्कोपी जैसे एंडोस्कोपी होती है वैसे कोलोनोस्कोपी होती है। एक छोटी सी वायर में जिसमें कैमरा डाल के वो इंसर्ट करते हैं, और वो आपके जो कोलन की हेल्थ है अंदर की उसको देखते हैं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई अंदर कैंसर जैसी चीजें तो नहीं बन रही है। तो कोलन कैंसर से ये कोलन जो बहुत कॉमन होता है ओल्ड एज में, यूएस यूके में तो मैंडेटरी है, आपके 50 साल के बाद हर साल आपको कराना ही कराना है। वो आपके इंश्योरेंस में ही प्रोसेस में होता है कि साल में एक बार आपको कोलोनोस्कोपी करनी है, क्योंकि वहां पे कोलन कैंसर बहुत प्रेवलेंट है एल्डर्स में। इंडिया में भी है, लेकिन हम लोग जाके मतलब प्रिकॉशनरी इसको कराते नहीं है, प्रोएक्टिवली कराते नहीं है। जब हमें जरूरत पड़ती है, जब हमें दिक्कत बढ़ जाती है, तब जाके किया जाता है। तो
सीए कैंसर जो है कि चाहे कैंसर इसका कोलन का हो चाहे किसी और अंग में हो, उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट यही है कि हम उसको अर्ली डिटेक्ट करें। जितनी अर्ली स्टेज पे हम कैंसर को डिटेक्ट कर लेंगे उतना बेटर उसका सक्सेस रेट है ठीक होने का। तो वो अर्ली डिटेक्शन तभी होती है जब आप अपने टेस्ट रूटीन में कराते रहें। हम नहीं चाहते कि किसी को भी ये चीज हो, लेकिन एक एज के बाद ऐसी चीजों के रिस्क बढ़ जाते हैं, और वेट ना करें कि मेरे को कोई दिक्कत कभी हो तो फिर मैं इलाज कराऊं। तो कोलोनोस्कोपी को अपने रूटीन एग्जामिनेशन में रखिए, साल में एक बार जरूर कराइए। अच्छी हेल्दी रिपोर्ट का पॉजिटिव रहिए कि रिपोर्ट अच्छी हेल्दी है, लेकिन अगर कभी बाई चांस किसी को होता है तो अर्ली डिटेक्ट हो जाएगा और उसके सक्सेस रेट है जो वो काफी अच्छा होगा ट्रीटमेंट का। तो कोलोनोस्कोपी 50 साल की उम्र के बाद साल में एक बार जरूर करानी है हमने। तो ये था आज का कॉन्स्टिपेशन का छोटा सा डिस्कशन। मेरी जो डिस्कशन का एक ऑब्जेक्टिव ये था कि कम से कम दवाइयाँ हम खाएं, दवाइयों की डिपेंडेंसी कम हो, और नेचुरल तरीके से कैसे इनहेंस कर सकते हैं स्टूल पास करने वाला मोशन, उस पर हम बात करें। जो जो बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं, जो हम डेली अगर रूटीन बना ले तो कोई दिक्कत हमें नहीं होगी, और जो दिक्कत है वो कम हो जाएगी। पानी खूब सारा पीना, 8 ग्लास पानी सुबह में उठ के एक रूटीन बना लीजिए। स्टिमुलेट करिए अपने जीआई ट्रैक को, चाहे वो कॉफी से हो, चाय से हो, गर्म पानी से हो, आप जो चाहे वो करें। मैं उस पर कोई आपको एक चीज नहीं बताऊंगा, जो आपके लिए वर्क करती है वो करिए। लेकिन जो सिगरेट पीते हैं वो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये मोशन पास करने से सिगरेट का एक फायदे के लिए उसके जो 100 नुकसान है वो नहीं हम चाहते। तो जो लोग सिगरेट पीते हैं उसको अवॉइड करिए, सिगरेट को बंद करिए, लेकिन उसकी जगह दूसरी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। और पानी खूब सारा पीजिए, 8 ग्लास कम से कम पानी आपने पीना ही पीना है। डाइट में फाइबर ऐड करिए, एक्सरसाइज करिए, बस और कुछ नहीं करना है। आप देखिएगा कि कॉन्स्टिपेशन काफी बेटर हो जाएगी आप। और जिस समय आए उस समय जरूर जाए, उसको अवॉइड ना करें, वो अवॉइड ना करें, वो कंट्रोल ना करें। बस अभी अगर आपके कोई सवाल है इस पे तो हम ले लेते हैं। एक सवाल ये है डॉक्टर साहब के 8 ग्लास में ग्लास का साइज 250 मिलीग्राम, 250 ml। हाँ सर, जो हमारा स्टैंडर्ड ग्लास आता है 200-250 के बीच में साइज का वाला ग्लास। क्योंकि तो ग्लास अगर का साइज अगर साउथ से चले, साउथ इंडिया से 150 से लेकर के पंजाब में जाकर 800 मिली का हो जाता है। तो नहीं, मैं किचन, मुझे किचन में जाना पड़ेगा ग्लास लाने के। जो नॉर्मल शीशे का ग्लास होता है पानी वाला, वो वाला, तो उसका साइज अराउंड 250 ml के अराउंड होना यस चाहिए। यस 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 उससे 2 लीटर हो जाएगा 8 ग्लास में। यस यस, बिल्कुल सही कैलकुलेशन आपकी सर, अच्छा, 2 लीटर हो जाएगा। दूसरा एक मेरा सजेशन था छोटा सा, हाँ सर, क्योंकि मेरा एक बहुत बैड एक्सपीरियंस है कि ये जो हस्क लेते हैं इसका इसबगोल का, ये आपने अच्छा से बताया है कि पानी में मिक्स करके पिए, क्योंकि कुछ लोगों को हैबिट होती है, मेरी भी थी किसी टाइम में, कि मुंह में एक चम्मच डाल करके ऊपर से पानी पी लिए। दिस इज वेरी वेरी रिस्की, क्योंकि इन माय फैमिली वन ऑफ द पर्सन डाइड बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि जैसे ही मुंह में डाला तो कुछ पार्टिकल उसके जा करके फंस गए वो सांस की नली में। राइट राइट राइट, those could not be dislodged and he died. यस, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने सर बोला है। जी, ये जो हस्क है, अगर किसने इसबगोल खाया होगा तो देसी, वो बहुत लाइट पार्टिकल्स होते हैं। और चिपक जाता है एक बार अगर उसको ड्राई हो तो। Yes. कहीं भी उसको थोड़ा मॉइस्चर मिलेगा चिपक जाएगा बहुत। राइट राइट, तो वो आपके बैक ऑफ द थ्रोट में चिपक सकते हैं और आपकी विंड पाइप में घुस सकते हैं, जिसकी वजह से एस्पिरेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जस्ट अ सजेशन। वेरी गुड सजेशन सर, आई लाइक योर सजेशन। और इसको सिंपल, इसका अवॉइड करने का तरीका है, आधे ग्लास 1 ग्लास पानी में वो चम्मच 2 चम्मच पानी में या दूध में आई थिंक कैन बी टेकन। राइट राइट राइट, यू कैन टेक एट नाइट जी, डबल डोज। डॉक्टर साहब। जी सर। डॉक्टर साहब, जब हम बच्चे होते थे तो हमारे पेरेंट्स जो हैं हमें रात को दूध के बीच में कैस्ट्रोल या 1 चम्मच देसी घी का डाल के देते होते थे, टू कीप योर बाउल्स एब्सोल्युटली फंक्शन। यस सर। ये कितना ठीक है, कितना गलत है? ऑल्दो वी यूज्ड टू फील वेरी कंफर्टेबल आफ्टर दैट, बट फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये ठीक है कि नहीं ठीक है? सर, कैस्टर ऑयल आज भी एल्डर्स में दिया जाता है जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो। तो कैस्टर ऑयल का बेसिकली जो काम है वो स्टूल सॉफ्टनिंग करना है, स्टूल को
मोशन को एनहेंस करना है। तो ये जो कॉन्स्टिपेशन की आपने बात करी बिल्कुल सही करी, आपको बचपन में भी दिया जाता होगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिपेशन का इशू है ये 2 साल की उम्र से भी शुरू होता है। 2 साल 1 साल के बच्चों में भी ये कॉन्स्टिपेशन होती है। तो बचपन में हम लोग जो पेरेंट्स थे वो देसी घी या कैस्टर ऑयल या इस तरह की चीजें, मिल्क वाली चीजें देते थे हमको, ताकि स्टूल हमारा सॉफ्ट हो, हार्ड ना हो। लेकिन ओवर द टाइम इसको लंबे समय के लिए यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैस्टर ऑयल के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो डिस्टर्बेंस है शरीर में, सोडियम और दूसरे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट, उनकी ये अब्जॉर्प्शन नहीं होने देता अच्छे से, जिसकी वजह से वो कमी हो जाएगी। आपको डायरिया मोर फ्रीक्वेंटली हो जाएगा अगर आप लंबे समय से कैस्टर ऑयल लेते हैं, तो आपको डायरिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सीवियर डायरिया जो है आपको डिहाइड्रेशन कर सकता है, अल्टीमेटली बीपी आपका डाउन कर देगा, तो ब्लड प्रेशर में कमी हो जाएगी। तो ये इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। आई वुड सजेस्ट कि कैस्टर ऑयल अभी इस उम्र में आप यूज ना करें। बहुत ज्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो दूसरे तरीके हैं उसको रिलीव करने के, कैस्टर ऑयल को अभी अवॉइड करें। थैंक यू सर। एक और चीज पूछनी थी, ये जो फाइबर बढ़ाने के लिए डाइट में एप्पल को मैं पूरा धो करके और बिना छीले हुए खाता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, बादाम सुबह में 5 रात को भिगो देते हैं, सुबह 5 बादाम खाता हूँ, वो भी बिना छीले हुए खा लेता हूँ। तो इज इट एडवाइजेबल और नॉट एडवाइजेबल? इट इज वेरी मच एडवाइजेबल सर। छिलका जो है ना, छिलके में ही जो ज्यादा चीजें होती हैं वो छिलके में ही होती हैं। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, सेब का छिलका उतार के खा लेते हैं, तो उसकी वजह से जो फाइबर कंटेंट है उसका वो कम हो जाता है, उसकी वजह से जो उसमें आयरन कंटेंट है वो कम हो जाता है। इसी तरह बादाम का छिलका उतार के खाने का भी कोई फायदा नहीं है। बादाम की जो पूरी ओवरऑल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है उसमें बहुत ज्यादा परसेंटेज छिलके में भी होती है। इसी तरह जो गेहूं को आटा पिसवाते हैं उसका भी छिलका हम रिफाइन करते जाते और बिल्कुल एक मैदे जैसा आटा बना लेते हैं, तो वो भी अवॉइड करना है, उसमें भी फाइबर कंटेंट चला जाता है। एक और फ्रूट होता है उसको प्रून्स बोलते हैं, ड्राइड फ्रूट आता है उसको, मुझे अब उसका हिंदी में नाम नहीं पता क्या है, मैं आपको फोटो दिखा सकता हूँ, आपको पता हो तो बता दीजिएगा मुझे। एक सेकंड। आलू बुखारा तो नहीं है प्रून्स? मैं आपको फोटो दिखा बोलते हैं। ये है, हाँ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देख पा रहे हैं ये वाला फ्रूट आप? ये जामुन जैसा होता है और उसको फिर ड्राई कर देते हैं, इसका मुझे हिंदी का नाम नहीं मालूम, प्रून्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अगर आप देख पा रहे हो तो ये ब्लैक कलर का, आलू बुखारा होता है ड्राइड, ब्लैक कलर का। हाँ हाँ सर, तो ये इसमें बहुत अच्छा तो आलू बुखारा। ओके ओके, आलू बुखारा, तो आलू बुखारा लेने, इसमें भी फाइबर कंटेंट जो है वो काफी अच्छा होता है, दिन भर में आप ले सकते हैं और इसके दूसरे फायदे भी बहुत ज्यादा है। डायबिटिक्स ले इसी सकते तरह हैं? प्रून सर कुछ क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में सर, 4-5 दिन के। और एवोकाडो, एवोकाडो में सबसे ज्यादा हाई कंटेंट होता है फाइबर का, हालांकि वो बहुत एक्सपेंसिव फ्रूट है, तो वो अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर जरूर टेस्टी भी नहीं होता। टेस्ट डेवलप हो जाता है। हाँ, तो फाइबर वाली चीजें देखिए, आपके साथ डाइटिशियन आती हैं शाम में, उनसे पूछिए फाइबर वाली और क्या चीजें बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली आपको ना जो स्टूल है उसको हैवी करके रखना है, उसको सॉफ्ट करके रखना है, तो वो अच्छे से आगे बढ़ता जाएगा, वो रुकेगा नहीं कहीं पे भी, तो वो अच्छे से आगे बढ़ता जाएगा। तो 1 दिन में 1.5 दिन में आपका स्टूल जितना भी बन रहा है वो बाहर निकल जाएगा, और वही हम चाहते हैं। जी, कोई और सवाल है इस पे? नहीं सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अनीता जी से मेरी बात हुई थी कल, राइट? जी। कैसे हैं मैम अभी आप? मैं बहुत अच्छा, मैं कल से सेशन सारे ले रही हूँ, एंड आज भी मॉर्निंग में भी लिया था मैंने एक्सरसाइज का, एंड आई रियली फील वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। ग्रेट ग्रेट। मैम थोड़ा सा कल लॉकडाउन का थोड़ा सा जो है साइड इफेक्ट मैम महसूस कर रही थी, तो मैडम हमसे जुड़ी, मैं आई एडवाइज्ड हर कि आप सेशन में आइए, दूसरे लोगों से बात करिए, यू विल फील बेटर, तो होपफुली शी इज फीलिंग बेटर नाउ। तो सर कॉन्स्टिपेशन का जो हमने बात करी, ये 1 हफ्ता जो रूटीन, प्लीज इसको अपनी लाइफस्टाइल में लाइए,
और हफ्ते 10 दिन के बाद मुझे बताइए कि इसमें फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ताकि फिर अगर नहीं हो रहा तो इस सेशन को और इम्प्रूव कर सके हम। तो इसका जो फर्स्ट एंड फीडबैक है वो ऐसे ही आएगा जब आप बताएंगे मुझे कि कॉन्स्टिपेशन ठीक हुई कि नहीं हुई, इससे दवाइयों के डिपेंडेंसी कम हुई कि नहीं हुई। तो प्लीज इसको रूटीन में लाइए और कॉन्स्टिपेशन को खत्म करिए, दवाइयों से डिपेंडेंसी खत्म करिए। ठीक है, अगर और कोई सवाल नहीं है तो फिर अभी हम सेशन खत्म करते हैं यहीं पे। कल जो सेशन है वो जैसे तेज जी ने बोला था। डॉक्टर साहब एक चीज पूछी, हाँ जी डॉक्टर एक चीज पूछनी थी मैंने, जी सर। ये जो एसिडिटी वगैरह जो होती है, ये इट इज बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन और देयर इज सम अदर रीजन बिहाइंड दैट? एसिडिटी सर? हाँ जी, इज इट ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन? नो, नॉट इंटायरली। वैसे तो ये पूरा चीजें एक साइकिल में काम करती हैं, बट एसिडिटी जो है उसके स्पेसिफिक रीजन अलग होते हैं। हार्ट बर्न, जो जलन सी रहती है हमारे सीने में और गले में, ये इस वजह से होती है क्योंकि जो एसिड बनता है हमारे स्टोमक के अंदर, ये वहीं रहने की बजाय हमारे जो फूड पाइप है इसोफेगस, इसमें निकल के आता है, जिसकी वजह से हमें जलन और एसिड वाली फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि बहुत सारी फुलनेस हो गई है, यहाँ पे गैस बन रही है और गले में खट्टे डकार आते हैं। तो ये जो वजह है ये इसकी एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं इसको। जो एसिड हमारे स्टोमक में बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है, HCl जो एसिड है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है, और हमारे स्टोमक के जो सेल हैं उसकी जो लाइनिंग है उनकी बनावट इस तरह की है कि उन पे कोई बुरा असर नहीं होता। लेकिन अगर यही एसिड हमारे निकल के बाहर की तरफ आ जाए, इसोफेगस में आ जाए, तो उस लाइन वहाँ की लाइनिंग को जलाता है, वहाँ की लाइनिंग को डैमेज करता है। तो इसलिए हमें ये वाली फीलिंग आती है। ओवर द टाइम जो यहाँ पे जो पाइप है जो स्टोमक के साथ जुड़ती है, वहां पे ना एक गेट बना रहता है, वहां पे स्फिंक्टर होता है जो खाना नीचे जाने के बाद बंद हो जाता है, तो वो खाने को बाहर वापस की तरफ आने नहीं देता। जब हमें बहुत ज्यादा रिफ्लक्स होता है, जो फीलिंग होती है वॉमिटिंग की, तभी ये खुलता है, अदरवाइज नहीं खुलता नॉर्मली। तो ओवर द टाइम एज के साथ या दूसरी रीजन के साथ ये जो स्फिंक्टर है ये कमजोर हो जाता है, इसके वॉल्स जैसे थोड़े लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एसिड बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो उस पर भी बात करेंगे, अलग से सेशन लेंगे कि उसको कैसे हम रिलीव कर सकते हैं। वो बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम है, सब में होती ही है, और उसकी वजह से ज्यादातर हम गैस की टैबलेट लेते रहते हैं। हफ्ते में मुझे पता है अगर 7 दिन नहीं तो 3-4 दिन तो ज्यादातर एल्डरली लोग पेंटॉप और ये दूसरी मेडिसिन का भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा सर, अल्सर बना देगा अंदर, पेप्टिक अल्सर। तो उसको अवॉइड करना चाहिए। उस पर भी बात करेंगे। अभी समय मुझे लगता है लॉकडाउन बढ़ ही जाएगा 14 के बाद हमारे पास टाइम बहुत होगा बात करने के। तो कल तेज जी की एक रिक्वेस्ट थी कि एंजाइटी स्ट्रेस वाले पे बात करें, अनीता जी की भी आई थिंक वो रिक्वेस्ट होगी कि उस पर भी बात करी जाए, तो कल एक सेशन ले लेते हैं इस पे। कल हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट पे। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जितने जुड़े हैं अपने अपने फंडे, अपने अपने जो तरीके आप पे काम करते हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, प्लीज डिस्कस करिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है वो इंटरेक्टिव टॉपिक है। आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें हैंडल करी हैं लाइफ में, तो आपने बहुत लंबा लाइफ देखी है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सिचुएशंस मेरे से बेटर देखी हैं, और उनकी मैनेजमेंट अब आपको बेटर पता है कि वो समय कैसे मैनेज करी जानी चाहिए थी। तो कल का जो सेशन है इंटरेक्टिव सेशन होगा। आई वुड रिक्वेस्ट आप सबसे कि आप अपने अपने कम से कम एक एडवाइस तो जरूर दें कि स्ट्रेस को कैसे, एंजाइटी को कैसे मैनेज रख सकते हैं, कैसे बेटर हम इसको कर सकते हैं, और मेरी तरफ से जो होगा मैं वो डिस्कस करूँ। थैंक यू सो मच आज के लिए, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सच ए नाइस टॉक। हमेशा आप करते हैं, आज भी बहुत अच्छा टॉक था। I think I benefited from it very much, as I think all others also must have benefited. Thank you. थैंक यू सुरेंद्र जी, नमस्ते।